ਸਾਡੇ पंजाब के इंचार्ज हरीश चौधरी जी, तमाम सीनियर लीडर नेतागण आशू जी, गुरकीरत जी, नागरा जी होरी, अज असी मालवा 1 की मीटिंग की सी, यानी कि तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कंटेस्टेड कैंडीडेट MLA साहबान ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆਪਦੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। बड़े सदियां तो राजनीतिक लोग आए चले गए, देश के प्रधानमंत्री बने गए, लेकिन उन्होंने आपदे विरोधियों को बहुत ध्यान दे नाल सुनिया ते उन्हां दीयां गल्लां ते गौर फरमाया। सो राहुल गांधी जी दे नाल, ये राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं है, ना ही राहुल गांधी जी दे नाल अन्याय है, ये देश के नाल अन्याय है। और ये तानाशाह सरकार ने सुनेहा देन दा एक काम किया है कि असी कुछ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति इन्ना अपने आप को यह समझन लग पे कि असी कुछ भी कर सकते हैं, असी रब तो भी तकड़े हैं, तो मेरा ख्याल हर देश के व्यक्ति का यह फर्ज बनता है कि उठ के सानू लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि सानू इस देश ने बहुत कुछ दिता है, इस धरती ने बहुत कुछ दिता है, साडा भी इस देश के प्रति कोई ना कोई फर्ज बनता है। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਦੀ ਅਹੂਤੀ ਔਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗਾ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਔਰ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ और पहली बारी लोग कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोकतंत्र, और पहली बारी डेफामेशन केस दे विच किसी व्यक्ति नूं 2 साल की सजा कर दी गई, जबकि भालिया जा रहा सी राहुल गांधी जी का की गुनाह है, कोई होर केस ED CBI जो कुछ ना हथियाया, तो फिर उन्होंने अखीरला हथियार यह अपनाया कि करनाटका च कीते हुए भाषण ते सूरत दे विच मुकदमा दर्ज करा के ते 2 साल की सज़ा ते नाल 24 घंटिया दे विच सदस्यता रद्द कर दी गई और घर छड़ाउण दे वास्ते चिट्ठी कढ़ दी गई। और तुहानूं पता है कि पूरे देश भर के लोगों ने राहुल गांधी नूं कहा है कि बेशक तुहाडे कोले घर नहीं है, राहुल जी साडे घर तुहाडे वास्ते खुले ने। ये मैनूं पता है जो अमरीका ते हमला होया सी 2002 की गल है, लादेन ने हमला किया सी, ते मैं पहली बारी जॉन एफ कैनेडी ते अक्तूबर के महीने उतरिया, ते 11 सितंबर की यह गल सी, 1 महीने बाद, ते हर घर ते लिखा सी गॉड ब्लैस अमेरिका, झंडा लग्या सी, हर कार ते एक स्टिकर लग्या सी। ते मैं आपदे रिश्तेदार जिहड़े मैनूं लैण आए सी, मैं उन्होंने पूछा भी हर घर ते वो कहते कि देशवासियों ने मोरी होके ये मुहिम चलाई है। सो कहने का मतलब उस तरह का एक माहौल
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ, ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ AICC ਦੁਆਰਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ तमाम ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 1 ਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ 'ਚ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੈਸ਼-ਨੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਮਰਥਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ रखेंगे। हरीश चौधरी। लगातार देश में राहुल गांधी जी महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता और जो संवैधानिक संस्था है और बाकी संस्थाओं के बारे में चिंता जाहिर कर रहे थे। पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा में इन्हीं विषयों को लेकर देश के लोगों के बीच में गई और इन कारणों से देश की क्या स्थिति हो रही है वो चिंता जाहिर की। इन बातों का जवाब केंद्र की सरकार के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का पर चर्चा के वक्त राहुल गांधी जी ने ये बातें लोकसभा के माध्यम से पूरे देश के सामने रखी। प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब देते वक्त एक भी उनके सवालों का उत्तर प्रधानमंत्री जी के पास नहीं था, इसलिए वो इधर उधर दूसरी बातें उन्होंने करी। और उसी के कारण जब देश की संस्थाओं ने जो उनको काम करना था वो नहीं किया, देश की संस्थाओं को जो दूसरों के लिए मदद करने के लिए जो उनके पास ताकत और पैसा था उसका दुरुपयोग कर अडानी की मदद करी। अडानी इकलौता केस नहीं है। जब ये संस्थाएं कमजोर और खत्म हुई तो इस देश के अंदर आने वाले समय में ऐसे कई और केसेस मिलेंगे। सिर्फ SBI, LIC और 27 करोड़ प्रोविडेंट फंड के लोगों का पैसों का दुरुपयोग नहीं हुआ, देश के हर नागरिक के पैसे का दुरुपयोग पिछले 8-9 वर्षों में हो रहा है और कहीं भी ये सच्चाई नहीं आई, इसलिए इन संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। ये पृष्ठभूमि थी। और जो साधारण से सवाल राहुल गांधी जी ने किए, उन सवालों का जवाब नहीं। आज दुनिया के अंदर ये उदाहरण बना हुआ है कि श्रीलंका की जैसी स्थिति नहीं हुई, पर आज भी श्रीलंका के अंदर संसद ने वहां अपने कमेटी के अंदर इस बात को रखा कि जो अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो भारत सरकार के दबाव के कारण दिया गया, पर हमारे देश में उसके कहीं भी चर्चा नहीं हुई क्योंकि हर माध्यम को शांत और चुप करा दिया गया। प्रेस के 90% से ज्यादा पत्रकार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो बात हम लोग अपने खुद के अखबार में, टीवी पर भेजते हैं, वो बात हमारे मालिकों के दबाव के कारण आगे नहीं छप रही है। निजी तौर पर जब किसी से उन लोगों से बात करते हैं तो वो बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि आज देश में क्या हालात बने। आने वाले समय के अंदर हम लोगों के बीच में जाएंगे और राहुल गांधी की लड़ाई नहीं, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई देश की लड़ाई। हर किसी को
जो देश के बारे में चिंतित है, देश के बारे में सहयोग करना चाहता है, आपके माध्यम से अपील है कि इस लड़ाई के अंदर शामिल हो, इस देश को बचाए, लोकतंत्र को बचाए। सिर्फ नारा नहीं है, संविधान को बचाइए नारा नहीं है, क्योंकि बात को किस और तरह से कैसे ले जाया जा सकता है, उसके क्या प्रयास है, उसका न्यूनतम स्तर हम लोग देख चुके हैं। उस पूरे भाषण के अंदर आप लोग खुद सुनोगे तो सिर्फ सवाल किए राहुल गांधी जी ने। नीरव मोदी और ललित मोदी के संदर्भ में ये बात करी कि इस तरह के आने वाले समय में और तो कोई मोदी नहीं निकलेगा, सिर्फ ये बात करी। और फिर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में क्या कैंपेन चला रही है, ओबीसी का अपमान। क्या नीरव मोदी जो धन लेकर गया वो ओबीसी का धन का उपयोग था? ललित मोदी जो धन लेकर गया वो किसी तरह से बात को भावनात्मक तौर पर कैसे बिना आधार पर डाइवर्ट करना। सड़क पर राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, उनकी आवाज कैसे चुप करी जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर किसी अपने अनुभव को देश में साझा कर रहे हैं तो उनसे पूछा जा रहा है। कोई भी निष्पक्ष तौर के ऊपर इस समाज का अध्ययन करेगा तो उसको खुद को स्थिति पता चल जाएगी कि हमारे समाज में कितनी महिला अपनी पीड़ा को अपने तक रख रही है। ये देश को नहीं पता, हमें नहीं पता, पर जम्मू कश्मीर की जगह उनके वहां दिल्ली में केस रजिस्टर कर वो पुलिस को भेजना। ब्रिटेन के अंदर जो बात उन्होंने कही नहीं, उस बात को तोड़ मरोड़ कर लोगों के बीच में कहना, और संसद खुद सत्ताधीश पार्टी रुकवारी है। ये हमारा नियम, हमारी परंपरा रही है। जिस हाउस का वो सदस्य नहीं रहे उसके बारे में कभी भी उसका नाम भी नहीं लिया जाता। चर्चा तो आगे की बात है, पर नियम परंपरा सबको नजरअंदाज करते हुए राज्यसभा के अंदर राहुल गांधी जी सदस्य ही नहीं थे। और ये पहली दफे नहीं हुआ। किसानों के संदर्भ के अंदर जब बिल पास किया गया उस दिन राज्यसभा में क्या हुआ वो सब हम लोग जानते हैं, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, मौन रह रहे हैं। उसके कारण स्थिति बद से बदतर हो रही है। आज हम लोग बात कर रहे हैं देश में लोकतंत्र है या नहीं है। अगर निष्पक्ष तौर के ऊपर हम लोग आकलन करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन द्वारा राज्यसभा का 2 पोस्ट खाली होना और दोनों के लिए अलग अलग चुनाव कराना, उस दिन ही देश के अंदर जो निष्पक्ष लोग थे उनको पता चल गया कि इलेक्शन कमीशन नियम और कानून से नहीं चल रही है, किस दबाव में चल रही है। उत्तर क्या हम लोगों को मिला है? क्या हम लोग खोज रहे हैं? मेरा आपके माध्यम से पंजाब के तमाम लोगों से, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं, ये देश की लड़ाई है। सिद्धांतिक तौर पर हम लोगों के किसी से मतभेद हो सकते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य हो। आज मिलकर हम लोग इस लड़ाई में शामिल हो। सिर्फ राजनीतिक व्यक्तित्व तक यह लड़ाई सीमित नहीं रहनी चाहिए। गैर राजनीतिक जितने भी लोग हैं उनसे भी मेरी अपील है वो भी इस लड़ाई में शामिल हो और इस देश को बचाए। ये अब चर्चा का विषय नहीं रहा है, ये हकीकत है कि देश खतरे में है। सब मिलकर इस देश को बचाए। धन्यवाद। क्या करना चाहिए? जो ऑस्ट्रेलिया में 3 व्यक्ति पकड़े हैं